welcome or welcome back to Prefit. And guess what? We have finally hit 1K subscribers on YouTube. So, drum rolls. And as you guys know कि Prefit channel मैंने PCOS girlies के लिए बनाया था ताकि वो अपनी fitness journey start कर सके. But I do get a lot of comments of guys, लड़कों के comment भी आते हैं कि यार हम भी तुम्हारी videos देखते हैं. So hi guys, you are also very much welcome to my channel because fitness has no gender. And today's video is all about the perfect leg day. And just to let you know guys, I used to have skinny legs and I've been bullied for that. But let's just keep those things aside. So if you are a beginner and you don't know how to train legs, after this video you will know exactly how to do squats with proper form, lunges the right way, how to train hamstring and glutes effectively without neglecting the calves muscles. So without a further ado, let's get right into it. And इस एक्शन से मुझे एक डांस स्टेप भी करना है, हीरे को फरे करे. And as I always say guys, एक एक्सरसाइज कम कर लो बट कभी वार्म अप मत स्किप करो. And the person behind the camera, this is also for you. You never warm up. So the first thing is leg swing. Basically सिंपल सा है, देखने से ही समझ आ जाएगा. वॉल पे इस तरीके से हाथ रखो, इंक्लाइन कर लो बैक को और इस तरीके से दोनों साइड पे 10 to 15 रेपिटेशंस. एंड इसके बाद वाला वार्म अप फ्लोर पे होगा गाइस. कपड़े नहीं गंदे करने तो मैट ले लो, बाकी मर्जी तुम्हारी है. So the very first is the lunges to hamstring stretch. एक लेग इस तरीके से आगे लंज पोजीशन में जाना है एंड देन मेक श्योर कि ये टू ना उठे. इफ यू आर अ बिगिनर तो वो उठ सकता है बट ट्राई टू कीप इट ऑन फ्लोर. दिस इज hamstring stretch and going to the lunge. So lunges to hamstring stretch. दोनों साइड करना है. So now I'm switching my leg. And this is for ankle mobility. Overall पूरी लेग का ही वार्म अप है. सो यूजुअली स्क्वाट में लोग डीप नहीं जा पाते या फिर पेन होता है बिकॉज एंकल मोबिलिटी वीक होती है. सो अपना वार्म अप कभी मत स्किप करना. एंड इसके बाद आई एम गोना डू 90-90. उसके लिए यू हैव टू सिट इन अ पोजिशन लाइक दिस. सो यू हैव टू मेक अ 90-degree एंगल विद बोथ द लेग्स. एंड वाइल यू आर स्विचिंग इट टू द नेक्स्ट साइड, मेक श्योर कि हिप पूरा मूव ना हो. थोड़ा बहुत होता है बट ट्राई टू कीप इट इन द सेम पोजिशन. एंड यू कैन ऑल्सो टेक द सपोर्ट ऑफ द फ्लोर or if you can just do it this way. This is for the hip rotation. And इसके बाद हम करेंगे hamstring to deep squat, hamstring stretch to deep squat basically. So toes out, you have to go in a deep squat and then come up so that hamstring पे यहाँ पे stretch है. You can hold the shoes. एंड बेसिकली योगा में इस आसन को मलासन कहते हैं. लाइक इस तरीके से यू नो डीप स्क्वाट में जाना. यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस और अपने लेग रूटीन में ऐड कर सकते हो एज अ वार्म अप. और इसके बाद हम करेंगे लैटरल स्क्वाट्स. सो उसके लिए साइड वाइज स्क्वाट करते हैं लाइक दिस. वेट आई विल शो यू. इस तरीके से you can take the support of the floor or just can go this way. मैं थोड़े टाइम से कर रही हूँ तो मुझे आदत है, but you can take the support of the floor. इसमें यहाँ पे hamstring पे खिंचता है तगड़े वाला. So our first exercise is the squats and I'm going to teach you 3 variations of squats: back squats, front squats and goblet squats. मैं personally front squats करती हूँ, but I'm going to teach you 3 of them and you can choose accordingly which works best for you. So let's get started. First come first, feet shoulder width apart and toes slightly outwards. Second thing, rib और pelvis एक single line में होना चाहिए. Third, you have to brace your core. If someone is gonna punch you, you will be able to handle it. Fourth, when we are going down, according to the biomechanics, सबसे पहले हमारा hip unlock होगा, then knee. So when we are going down, सबसे पहले hip हल्का सा hinge and then knees will go in the direction of the second toe. Till the time I'm able to get the 90-degree angle. इससे ज़्यादा मैं नीचे नहीं जाऊंगी, नहीं तो butt wink हो जाएगा. And one more thing, हम inhale करते हैं when we are descending और जब हम ऊपर आते हैं तो हम exhale करते हैं. Same technique हम तीनों squat में implement करेंगे. And now I'm going to show you barbell के साथ positioning कैसे करते हैं. First squatting on barbell, make sure कि जो बार है वो तुम्हारी हाइट से थोड़ा नीचे हो ताकि तुम्हें वेट उठाने के लिए इस तरीके से लिफ्ट ना करना पड़े. सो गो अंडर द बार, नी स्लाइटली बेंट और जो बारबल होगा वो ट्रैप्स पे आएगा. थोड़ा सा अपर बैक को एंगेज करके एल्बोस इनवर्ड और रिस्ट इस तरीके से सीधा होना चाहिए, तो रिस्ट पे भी कभी कभार लोड आ जाता है. सो नीज बेंट, ट्रैप्स पे, बैक एंगेज, elbows in and then lift up.
1 to 2 steps back, third just to adjust your position. Again, pelvis and ribs in a single line, core engaged. First you have to hinge your hips, knees will go into the direction of second toe, and the moment I'm gonna able to get the 90-degree angle, I'm gonna straight away come up. सो मेरे वर्कआउट रूटीन में मैं फ्रंट स्क्वाट्स करती हूँ, बैक स्क्वाट्स नहीं करती, बिकॉज आई वॉज डूइंग बैक स्क्वाट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम और मुझे क्वाड्स में डेफिनेशन नहीं दिख रही थी. फ्रंट स्क्वाट्स में क्या होता है, वेट फ्रंट पे रहता है तो क्वाड्स पे ज़्यादा टेंशन आती है और इसमें कोर का एंगेजमेंट भी रहता है. तो इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एब्स, और अगर तुम अपना कोर एंगेज कर रहे हो अच्छे से फ्रंट स्क्वाट्स में, तुम्हें उसमें भी डिफरेंस दिखेगा. और एक और चीज़, इफ़ यू डू नॉट हैव शोल्डर मोबिलिटी तो फ्रंट स्क्वाट्स मत करना, बहुत गंदा स्ट्रेन आता है शोल्डर्स पे. एंड वन मोर थिंग जो मैंने बाबल स्क्वाट में नहीं बताई थी, व्हेन वी आर गोइंग डाउन, तो जब हम नीचे जाते हैं जो बारबल होता है वो फीट के सेंटर में एकदम बारबल स्ट्रेट अलाइन आना चाहिए. अभी मैं करके दिखाती हूँ. सो यू हैव टू होल्ड द वेट लाइक दिस. अगेन बाकी सब सेम रहेगा जैसे बैक स्क्वाट में बताया था. मैं इस तरीके से फिंगर्स पे लेती हूँ और एल्बोज को इस तरीके से ऊपर लेके जाना है. एंड जब मैं नीचे आऊँगी, यू कैन सी जो बारबल है वो एकदम सेंटर ऑफ द टो पे आ रहा है. ठीक है, अगेन सेम थिंग, ribs and pelvis aligned, core braced, hips will go slightly backward in a hinge position. You will go down till the time you are able to get the 90-degree angle and then come up. And this is not an actual workout guys, I'm just showing you. So I'm gonna switch to the goblet squats now. And एक और चीज़, देर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट स्क्वाड. मेरा मतलब उससे है कि हाउ डीप यू कैन गो. वो जो एस टू ग्रास वाला थिंग है वो उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल है जिनका फीमर थोड़ा शॉर्ट है. इफ़ यू आर समवन टॉलर देन मी, यू वॉन्ट बी एबल टू गो एज मच एज डीप आई एम एबल टू गो इन माई स्क्वाड्स. उस केस में गॉबलेट स्क्वाड्स आर दी बेस्ट. यू कैन जस्ट प्लेस अ प्लेट लाइक दिस. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम जैसा बताया था स्क्वाड का. डंबल की पोजिशनिंग बता देती हूँ. चेस्ट अप, और इसको इस तरीके से अपने चेस्ट पे होल्ड करना है. ग्रिप अच्छे से लेना, अगर बीच में वेट गिर गया तो पूरा पोजीशन खराब हो जाएगा. अगेन कोर ब्रेस्ड, हिप्स विल गो एंड देन नीज इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड टो. इसमें मैं और ज़्यादा डीप जा पा रही हूँ बिकॉज प्लेट लगाने की वजह से मेरी एंकल मोबिलिटी इंक्रीज हो गई है. आई एम गोना शो यू फ्रॉम द साइड एज वेल. Now comes the second exercise, which are the lunges, and a little story time before that. As you guys know कि मुझे PCOS है और मुझे सर्वाइकल भी है. बहुत टाइम से मेरे इस एरिया में पेन आ रहा था एंड आई थॉट कि वो सर्वाइकल है. देन मुझे एक कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट आई हुई थी थ्रू इंस्टाग्राम, एक जो फीचर चल रहा है आजकल, फ्रॉम QI स्पाइन, इट्स इन राजौरी गार्डन. व्हेन आई विजिटेड आई गॉट टू नो कि मेरे मसल इम्बैलेंस है राइट साइड पे, और उस ट्रीटमेंट का कॉस्ट उन्होंने मुझे 25,000 अराउंड बताया. तो मैं उन्हें आई लेट यू नो बोल के आ गई. एंड देन आई डिड माई रिसर्च एंड मुझे पता लगा कि यूनिलैटरल मूवमेंट्स करने चाहिए इफ़ यू हैव मसल इम्बैलेंस. तो अपर बॉडी में भी मैं करती हूँ, लोअर बॉडी में सिंगल लेग मूवमेंट, लंजेस या फिर स्प्लिट स्क्वाट्स वगैरह मैं करती हूँ. सो मैं रिवर्स लंजेस करती हूँ वाइल क्रिएटिंग अ डेफिसिट एज इन थोड़ा सा फ्लोर से ऊपर. एंड आई यूज स्टेपर फॉर दैट. इफ़ यू डोंट वांट टू यूज स्टेपर, तुम डायरेक्टली फ्लोर पे भी कर सकते हो. और मैं शूज़ रिमूव करूँगी यार इसमें. As I told you guys, मैं रिवर्स लंजेस करती हूँ, वो थोड़ा सा ग्लूट डोमिनेंट होता है. एंड इफ यू आर गोना डू द फॉरवर्ड लंज तो वो क्वाड्स पे आएगा. एक चीज जो इसमें मेन है, चाहे फॉरवर्ड लंज करो चाहे बैकवर्ड लंज करो, आई मीन रिवर्स लंज करो, जोन सा लेग आगे होता है उस पे फोर्स देके उठना है, इस पे फोर्स नहीं देना है. फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग रिवर्स नाउ. सो इस तरीके से पीछे जाना है, ये जस्ट सपोर्ट के लिए है. इस पे फोर्स देके यू हैव टू कम अप. फीट इतना थोड़ा सा फ्लोर से ऊपर होगा, पूरा नहीं रखना है. एंड ऑल्सो इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, यू कैन टेक अ सपोर्ट ऑफ समथिंग, उसको पकड़ के यू कैन गो डाउन एंड देन कम अप. और अगर इसी को थोड़ा सा ग्लूट्स फोकस बनाना है, यू कैन जस्ट टिल्ट दिस वे. एंड ऑलवेज मेक श्योर जब भी हम नीचे जाते हैं ना, 1 सेकेंड का होल्ड जरूर करें. So that's about it. We're gonna move to the third exercise now. Okay, so the third exercise is the ideal. मैं बाबल के साथ करती हूँ, डंबल्स के साथ भी कर सकते हो. So knees slightly bent and you have to hinge your hips back and then go down.
and then straight away come up. Most of the time इसमें क्या होता है जब हम weights के साथ करते हैं, we try to pull the weights through our upper body, but that is not the case. तुम्हें lower body के force से ऊपर आना है, हाथ सिर्फ weight को पकड़ने के लिए वहाँ पर है. See, थोड़ा सा shoulders retracted, chest up, close slightly out, and then first movement इसमें क्या है, hip hinge होगा. नीज के यहाँ तक एंड देन स्ट्रेट अवे कम अप. और अगर इसी को हैमस्ट्रिंग फोकस बनाना है तो थोड़ा सा टोज इनवर्ड और लेग्स एकदम स्टिफ रहेंगे. इसमें हिप हिंज काफी कम होगा. So our fourth exercise is the calves, and trust me guys, the day I started doing it weights के साथ मुझे सच में बहुत difference दिख रहा है. अभी I'm not wearing anything, I cannot show you, but 15-15 it's better to do on Smith. थोड़ा कंट्रोल रहता है मूवमेंट. और फीट का प्लेसमेंट मैं अभी दिखाती हूँ. स्टेपर से हाफ फीट बाहर, सो व्हेन यू कम्स डाउन पूरा स्ट्रेच आएगा और ऊपर जाकर 1 सेकंड का होल्ड. और एक और बात मुझे बोलनी है, एक तो हम काफ्स के लिए क्या करते हैं, 25 के 4 सेट. कुछ नहीं होता है उस 100 काफ रेजेस से. ऑनेस्टली जब तक वेट नहीं दोगे मसल पे ग्रोथ नहीं आएगी. सो आई एम जस्ट गोना लिफ्ट इट नाउ. अगेन कोर ब्रेस रखनी है और एल्बोस इस तरीके से इन, नीचे जाके इनहेल, ऊपर आके एक्सहेल और 1 सेकंड का होल्ड. 10 to 15 रेप्स और लास्ट रेप पे आई होल्ड इट फॉर लाइक 15 सेकंड्स. So that's about it for today guys. I hope you enjoyed the video and learned something from it. Also I want to share something personal with you. I want to take my fitness journey to the next level, and for that I have to invest into studies. My income is so random as of now. I might look rich but हर पीली चीज़ सोना नहीं होती. So I need your support. मेरा watch time बढ़ाओ so that मेरा YouTube monetize हो जाए. And I know social media में बहुत power है. जितना strangers तुम्हारे काम को support करते हैं उतना known लोग नहीं करते, apart from the team I'm working with. So this is the first video of 2026, and by the end of the 2026 I'm making a promise here with you guys that I'll be certified. So that's about it, and I'll see you in the next one.